ওকে। আহ, আজকে আমাদের যে টপিক, প্লিজ মিউট দ্য সাউন্ড এসএসএইচ ভাই, শায়ের ভাই। আজকে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে সেন্টিমেন্ট, জোন, इन्फ्लुएंस, प्रेशर, टारगेट। आज का जो टॉपिक है वो है सेंटिमेंट, जोन, इन्फ्लुएंस, प्रेशर एंड टारगेट। टारगेट में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बट ये चारों चीज हम आज सीखेंगे। টার্গেটকে আমরা পরবর্তী ক্লাসে শিখব, বাট এই চারটা জিনিস আমরা আজকে শিখব। এবং এই চারটা জিনিস সম্পর্কে আমি বাইনারিতে যা বলেছি তা এখানে সেম রিপিট করব। ओके। बाइनरीते যেভাবে বলেছি তা এখানে सेम रिपीट করব। ये जो चार चीज है इसके बारे में मैं बाइनरी में जो बोला था उसको ही सेम रिपीट करेंगे हम यहाँ पर। ओके। तो कोई भी अलग क्लास नहीं है, জাস্ট ফোকাস অন ইট। তো আমরা প্রথমে শিখেছিলাম স্ট্রাকচার। স্ট্রাকচার শিখেছিলাম তিন ধরনের, সেটা হচ্ছে আপ, ডাউন অ্যান্ড রেঞ্জিং মার্কেট। তিন ধরনের স্ট্রাকচারকে আমরা শিখেছিলাম। তো এই তিন ধরনের স্ট্রাকচারে আমরা কিছু পজিশন পাই। আমরা কিছু পজিশন পাই। কি কি পজিশন? ধরেন আপট্রেন্ড একটা স্ট্রাকচার যাচ্ছে, এখানে আমরা সেলার পজিশন পাই, বায়ার পজিশন পাই, সেলার পজিশন, বায়ার পজিশন, এই ধরনের পজিশন পাই। তো এগুলোকে আমরা বলে থাকি মূলত সেলার পজিশন এন্ড বায়ার পজিশন, যেগুলো আপনারা জানেন। তো একটা সেন্টিমেন্ট, যেহেতু আজকে আমাদের প্রথম টপিক সেন্টিমেন্ট, তো সেন্টিমেন্টটা এসেছে কোথায় থেকে? সেন্টিমেন্টটা এসেছে মূলত হচ্ছে মার্কেটে বায়ার সেলারের অনুভূতির জায়গা থেকে। সেন্টিমেন্ট হচ্ছে এমন একটা জায়গা, ঠিক আছে, সেই জায়গাটাতে বায়ার সেলারের অনুভূতিটাকে আমরা বুঝতে পারি, বায়ার সেলারের সেন্টিমেন্টটাকে আমরা বুঝতে পারি। ওকে। সেন্টিমেন্ট মূলত মার্কেট বিহেভিয়ারকে আমাদের সামনে তুলে ধরে, মার্কেটের পসিবল ডিরেকশন সম্পর্কে আইডিয়া দেয়। ওকে। এবং এই সেন্টিমেন্টটা ফরেক্সের ক্ষেত্রে শুধু এই 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট দেখলে হয় না। এই সেন্টিমেন্টটা ফরেক্সের ক্ষেত্রে হায়ার টাইম ফ্রেম দেখে অনেক কিছু কনফার্ম করতে হয়। হ্যাঁ, সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব। পসিবল ডিরেকশন সম্পর্কে যদি আপনাদেরকে রিয়েলি জানতে হয়, যে পসিবল ডিরেকশন সম্পর্কে আপনারা রিয়েলি জানতে চাচ্ছেন, তাহলে সেন্টিমেন্ট ফরেক্সে অনেক বেশি ইফেক্টিভ, অনেক বেশি ইফেক্টিভ। মূলত সেন্টিমেন্টের ক্ষেত্রে এই পসিবল ডিরেকশন আমরা হায়ার টাইম ফ্রেম এবং লোয়ার টাইম ফ্রেম, দুটো টাইম ফ্রেমেই আমরা দেখে থাকি सेंटिमेंट के। तो प्रथम ही जने आसी एकटू सेंटिमेंटेर ব্যাপারে। तो हम लोग पहले सीखे थे, जो लर्न किए वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम 3 टाइप्स देखे थे, उसके अंदर है अप, डाउन एंड रेंजिंग मार्केट। एंड ये जो मार्केट्स है इसमें हम कुछ पोजीशन आइडेंटिफाई किए हैं। क्या कौन सा समझो, एक अप ट्रेंड का मार्केट है, उसमें हम सेलर पोजीशन, बायर पोजीशन, ये सारी चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड सेंटिमेंट हम लोगों को मेनली मार्केट का जो बिहेवियर है, बायर सेलर का जो सेंटिमेंट है, बायर सेलर का जो फीलिंग्स है, बायर सेलर कहाँ से आना चाहता है, ये चीज हमारे सामने दिखाता है। मार्केट का अगर पॉसिबल डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना हो तो हमें सेंटिमेंट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटिमेंट को सही से आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन हम जस्ट कोई भी फिक्स टाइम फ्रेम में देख के डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी फिक्स टाइम फ्रेम में देख के डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए हायर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम को जानना बहुत जरूरी है। ओके। तो इससे पहले हम इस चीज में घुसे, इसके पहले हम जान लेते हैं कि सेंटिमेंट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज को देखते हैं। তো আপনারা সবাই জানেন যে যদি একটা সেন্টিমেন্ট কখন ভ্যালিড হয়, যখন সে তার হাইকে ব্রেক করে তখন সেন্টিমেন্ট ভ্যালিড হয়। ওকে। তখন সেন্টিমেন্ট কি হয়? ভ্যালিড হয়। এখন সেন্টিমেন্ট ড্র করার উপায় কি? সেন্টিমেন্ট ড্র করার জন্য আপনাকে দুটো
ভ্যালিড পজিশনের দরকার। ভ্যালিড পজিশন মানে যদি আপ ট্রেন্ড মার্কেট হয় দুটো ভ্যালিড বায়ার পজিশন প্রয়োজন, বায়ার সেন্টিমেন্টকে ড্র করার জন্য। ওকে, যদি ডাউন ট্রেন্ড মার্কেট হয় দুটো ভ্যালিড সেলার পজিশন প্রয়োজন, দুটো পজিশন যদি ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট ড্র করতে হয় দুটো ভ্যালিড সেলার পজিশনের প্রয়োজন, হ্যাঁ, যাদের লো ব্রেকিং অবস্থায় থাকবে। এটা আপনারা জানেন যে সেলার পজিশনের প্রয়োজন। তো সেন্টিমেন্ট ভ্যালিড হচ্ছে কখন? হাই বা লো ব্রেক করলে, রাইট? আর রেঞ্জিং সেন্টিমেন্ট ভ্যালিড হয় কখন? যখন হাই বা লো এর মধ্যেই থাকে, কোনোটাকেই ব্রেক করবে না, তখন হচ্ছে হাই বা লো এর মধ্যে থাকে, তখন সেটা হচ্ছে রেঞ্জিং সিচুয়েশনের ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট হয়। এখন একটা ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট যদি আপনাকে ড্র করতে হয় তাহলে আপনাকে দুটো ভ্যালিড পজিশনের প্রয়োজন। দুটো কি? ভ্যালিড পজিশনের প্রয়োজন। আপ ট্রেন্ডে যদি আমি বাইরের সেন্টিমেন্টকে ড্র করব নিশ্চিত, তো আপ ট্রেন্ডে যদি বাইরের সেন্টিমেন্টকে আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে এটা কি ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট? ইজ ইট আ ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট? এনিওয়ান? জি ভাইয়া। ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট। ইজ ইট আ ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট? না ভাইয়া, আরে ব্রেক করছে না তো। ওকে, রাইট নাও লাস্ট টু সিচুয়েশন হিসেবে এটা ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট না, রাইট? যদি ব্রেক করে যেত তাহলে ভ্যালিড হইতো। তাহলে ভ্যালিড হতো। তো আমরা ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট কিভাবে, ভ্যালিড পজিশন, বায়ার পজিশন, সেলার পজিশন, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানি, রাইট? জি ভাইয়া। জানি, ঠিক আছে। কিভাবে ড্র করতে হয় সেটাও জানি, তাই না? जी। ओके, तो हम लोग जब एक सेंटिमेंट ड्रॉ करने जाते हैं तो इसके लिए समझो एक अप ट्रेंड का मार्केट है, उसमें दो पोजीशन हम देखते हैं, एक है सेलर का पोजीशन, एक है बायर का पोजीशन। तो अप ट्रेंड में हम ऑलवेज बायर का सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, डाउन ट्रेंड में डाउन का सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। इस चीज में एंड रेंजिंग सिचुएशन में अप एंड डाउन दोनों ही ब्रेक नहीं होना चाहिए रेंजिंग सिचुएशन में। जी भैया। तो ये सेंटिमेंट कब वैलिड होता है? हाई जब ब्रेक करेगा तब एक ट्रेंड वैलिड होता है, स्ट्रक्चर वैलिड होता है, उसके साथ सेंटिमेंट भी वैलिड होता है। एंड अप ट्रेंड में अगर हम वैलिड सेंटिमेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसमें दो पोजीशन चाहिए हमें वैलिड सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड दो पोजीशन ही वैलिड होना चाहिए। अप ट्रेंड में हम किसको ढूंढते हैं? बायर का सेंटिमेंट को ढूंढते हैं। तो इसमें अप ट्रेंड में अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहे तो ये दो पोजीशन वैलिड है बायर का, जी भैया। वैलिड है, तो हम सेंटिमेंट यहाँ पर ड्रॉ करें। बट समझो अगर ये पोजीशन वैलिड नहीं है, अगर वो हाई नहीं ब्रेक कर पाते, तो क्या ये जो लास्ट दोनों हैं इस पोजीशन से क्या हम वैलिड सेंटिमेंट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं भैया। नहीं, बिकॉज वो वैलिड पोजीशन नहीं है। सो डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम है, रेंजिंग के लिए भी सेम है, जी भैया। ये वैलिड पोजीशन चाहिए। विदाउट वैलिड पोजीशन हम नहीं ड्रॉ कर सकते सेंटिमेंट को। ओके, और एक चीज, सेंटिमेंट के अंदर अगर इनसाइड कैंडल पड़ जाए तो उसको हम सेंटिमेंट नहीं कहते हैं। अगर सेंटिमेंट के अंदर इनसाइड कैंडल पड़ जाता है तो उसको हम सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं ड्रॉ करते, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, जी রাইট? जी भैया। যদি সেন্টিমেন্টের মধ্যে ইনসাইড ক্যান্ডেল পড়ে যায় তাহলে আমরা সেন্টিমেন্ট আকারে এখানে ড্র করি না, আমরা ডিরেক্ট হাই টু লো সেন্টিমেন্ট ক্যান্ডেলকে, ইনসাইড ক্যান্ডেলকে বাদ দিয়ে আমরা ড্র করে থাকি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বিষয়। এখন তার মানে আমরা জানলাম যে একটা সেন্টিমেন্টে দুটো পজিশন থাকে, রাইট? একটা সেন্টিমেন্টে एक सेंटिमेंट में दो पोजीशन रहता है, एक है बायर का पोजीशन, एक है सेलर का पोजीशन, जी ठीक है ना? जी भैया। तो इसका बाद में जो टॉपिक है वो है ओपन एरिया, जो आप लोग जानते हैं ओपन एरिया क्या है। तो इस पोजीशन से मार्केट का डायरेक्शन, आप अगर वैलिड पोजीशन होता है तो मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? ऊपर होगा। ऊपर होगा, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर सेंटिमेंट तक होगा, जी भैया। ठीक है ना? अगर वैलिड पोजीशन होता है तो। जी भैया। एंड वैलिड पोजीशन होने के बाद ये जो मार्केट का टारगेट ऊपर है, मार्केट में यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इस प्लेस को हम कहते हैं ओपन एरिया, जी ठीक है? क्या कहते हैं? ओपन एरिया।
ओपन एरिया हम लोग कहते हैं। তো আমরা যখন একটা সেন্টিমেন্ট ড্র করলাম, তো সেন্টিমেন্টে আমরা দুটা পজিশন পেলাম, বায়ার পজিশন এবং সেলার পজিশন। ওকে, এই বায়ার সেলার পজিশনের মধ্যে যখন আমরা ওপেন এরিয়াকে আইডেন্টিফাই করতে যাব, তখন আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট হতে হবে, এবং ভ্যালিড সেন্টিমেন্ট থেকে তারপরে আমরা যে ডিরেকশনে মার্কেটে যাওয়া উচিত বা যেই ডিরেকশনে পসিবল ডিরেকশন যেতে পারে সেই জায়গাটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করব, রাইট? এবং এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের ওপেন এরিয়া, এবং এই ওপেন এরিয়া হওয়ার জন্য অবশ্যই ভ্যালিড পজিশনের প্রয়োজন। কথা বোঝা গেছে? ওপেন এরিয়াটা হওয়ার জন্য অবশ্যই কি ভ্যালিড পজিশনের প্রয়োজন। ভ্যালিড পজিশন যদি না হয় তাহলে আমরা এটাকে ওপেন এরিয়া হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। এতটুকু বোঝা গেছে? এতটুকু বোঝা গেছে? জি ভাইয়া। গুড। এতটুকু যদি বোঝা যেয়ে থাকে তাহলে আমরা চলে যাব সেন্টিমেন্ট চেঞ্জ হয় কি কি কারণে, যেগুলো আমরা শিখে এসেছি অলরেডি, তাও আমি রিপিট করছি। আমি আগেই বলতেছি যে মার্কেটের আমাদের অ্যাকচুয়াল খেলাধুলা হবে উইক অ্যান্ড এন্ট্রি, এই দুটো বিষয় অ্যাকচুয়াল খেলাধুলা। সেখানে আমি স্টপ লস, লিকুইডিটি প্লে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো, এটা একদম শেষ ভাগে। তার আগের ভাগের যতগুলো বিষয় আছে সেগুলো আপনারা জানেন অলরেডি। ওকে, তো সেন্টিমেন্ট চেঞ্জ হয় তিনটা কারণে, সেটা আপনারা জানেন। 1 2 3 आप सब लोग जानते हो कि सेंटिमेंट चेंज क्यों होता है। एक, मार्केट जाते जाते अगर वीक एग्जॉस्ट हो जाता है तो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मार्केट किसी भी टारगेट में जाके आकर वीक, जो अपोजिट पार्टी का टारगेट में आके आकर वीक एग्जॉस्टेड हो जाता है तो सेंटिमेंट चेंज होता है। और तीसरा है, मार्केट अगर स्वाइप करता है तो सेंटिमेंट चेंज होता है, राइट? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া। তো সেন্টিমেন্ট কি কারণে চেঞ্জ হয়? তিনটা কারণে। একটা হচ্ছে মার্কেট যেতে যেতে যদি নিজেকে, ধরো বাইরেরা যাচ্ছিল, যেতে যেতে নিজেকে উইক এক্সজস্ট করে ফেললো, তাহলে ডিরেকশন চেঞ্জ হয়। অপোজিট পার্টি টার্গেটে যায় উইক এক্সজস্ট করে ফেললো, সে কারণে ডিরেকশন চেঞ্জ হয়। এবং যেতে যেতে সে যদি সোয়াইপ করে ফেলে তাহলে ডিরেকশন চেঞ্জ হয়। ওকে, এই তিনটা কারণে সেন্টিমেন্ট চেঞ্জ হয়, এবং এই তিনটা কারণ আপনারা আগেও জেনে এসেছেন। এখন আমি জাস্ট রিপিট করছি, একটা শর্টলি রিপিট দিচ্ছি। ওকে, ব্রডলি রিপিট দিচ্ছি না। এখন মার্কেটে ডিরেক্ট যে চেঞ্জ হওয়া, কোনো টার্গেটে যে চেঞ্জ হওয়া, এই বিষয়গুলোকে আপনারা বুঝেন। সোয়াইপের বিষয়ে এই বিষয়গুলোকে বুঝেন, ঠিক কিনা? বুঝেন কি বুঝেন না? জি ভাইয়া। সবাই বুঝেন তো? ये तीनों चीज जिसके लिए मार्केट में टारगेट चेंज होता है, इसको आप समझते हो और नहीं? 1 জি ভাইয়া। 2 3, ये तीनों चीज आप समझते हो। एंड स्वाइप के लिए कौन सा कंडीशन है, इस चीज को भी आप समझते हो, राइट? इसको जी क्या भाई। एक्सप्लेन करना जरूरत है? नहीं। এটাকে এক্সপ্লেন করার কোনো প্রয়োজন আছে? সেম, একদম সেম। তো ওইটাকে আর এক্সপ্লেনে গেলাম না, আপনারা যেহেতু জানেন টার্গেট চেঞ্জের বিষয়টা, ঠিক আছে? নতুন যদি স্টুডেন্ট হতো তাহলে হয়তো অনেক এলাবোরেটলি এক্সপ্লেন করতাম। তো সেম চিজ ফরেক্সও এভাবে কাজ করে। জোনের যে লজিকটা, সেম জোনের যে লজিক বাইনারিতে কাজ করে, সেম এখানেও কাজ করে, কিন্তু একটু ডিফারেন্স আছে। ओके, जोन जोन में मैंने क्या बोला था कि अगर सेलर पार्टी वीक है एंड बायर पार्टी स्ट्रांग है तो जोन ब्रेक कर जाएगा। अगर सेलर पार्टी स्ट्रांग है, बायर पार्टी एग्जॉस्ट है, तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, राइट? जोन से जी भाई। जी रिवर्स भैया। कर जाएगा। ये था जोन का लॉजिक, बट यहाँ पर मैं लास्ट क्लास में सिखाऊंगा जोन का कुछ चीज, के देखो जोन का उस चीज में क्या ऐड होगा। জোনের ব্যাপারে আমরা যা জেনেছিলাম তা তো আপনারা সবাই বুঝেন, কিন্তু জোনের এই ব্যাপারটাতে লাস্ট শেষের দিকে আসে যখন মূল ক্লাসটা হবে, এন্ট্রি ক্লাসটা, সেই এন্ট্রি ক্লাসটাতে আমরা শিখাবো তখন যে এই জোনে এই যে স্টপ লসের যে বিষয়টা, হ্যাঁ, স্টপ লসের যে বিষয়টা, এই বিষয়টা সম্পর্কে আলোচনা হবে, ঠিক আছে? তখন জোনের এই বিষয়টা ক্লিয়ার হবে। लास्ट क्लास में इस कोर्स का लास्ट के दिक में हम जब सीखेंगे कि एंट्री कहाँ से लेना होगा, कैसे लेना होगा, किस तरह से लेना होगा, कब ये वीक बड़ा देगा, कब ये वीक छोटा देगा, एंड मार्केट कहाँ तक जाके फिर से उठ जाएगा, ओके, फिर से उठ जाएगा, एंड कहाँ पर जाके फिर से गिर जाएगा, ओके। इस चीज को हम समझेंगे
लास्ट 2-3 क्लास में। ओके, इसके अलावा जो चीज है उसका जो मतलब है सेम बाइनरी की तरह है, ठीक है, सेम बाइनरी की तरह है। वो एक्सर्शन बोलो, जोन बोलो, इन्फ्लुएंस बोलो, प्रेशर बोलो, ओके, टारगेट बोलो, वो सब सेम है, सब सब সেম है। সবাই বুঝতে পেরেছেন? বাকি সবকিছু সেম। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? जी भैया। ओके, तो जोन के जो लॉजिक है वही लॉजिक है, इन्फ्लुएंस का जो लॉजिक है वही लॉजिक है, प्रेशर का जो लॉजिक है वही सेम लॉजिक है, टारगेट का जो लॉजिक है वही सेम टारगेट का लॉजिक है, गैप का जो लॉजिक है वही सेम लॉजिक है। तो क्या ये सारी चीज मुझे रिपीट करना चाहिए? आप लोगों में कोई भी न्यू स्टूडेंट नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सारी चीज मैं रिपीट करूं, ये एग्जिस्टेंट पार्ट, ये सारी चीज, और डायरेक्ट चला जाऊं वो लास्ट 3 क्लास में? मुझे भी ये सारी चीज फिर से पढ़ाना আচ্ছা নেই লাগ रहा है। কি বলেন সবাই, যে এই জিনিসগুলো কি আবার রিপিট করা দরকার আছে না? কারণ আপনাদের মধ্যে কেউ না নতুন ভাইয়া, নাই, কেউ মেইনটা নতুন দেখলে নাই, ভালো হবে। নতুন নাই আপনাদের মধ্যে, আপনারা সবাই বুঝেন। কারণ দেখেন মার্কেট ওই সোয়াইপ আসছে, বায়ার পাওয়ারফুল, সেলার এক্সজস্টেড, বায়ার আবার কন্টিনিউ করেছে, বায়ার এক্সজস্টেড, সেলার আসছে, সোয়াইপ হয়েছে, রাইট? বায়ারও এখানে এক্সজস্টেড, সেলারও এক্সজস্টেড। কি করবে? কিছুক্ষণ রেঞ্জিং করছে, সেলার তার লাস্ট ডিফল্ট দিছে, বায়ার পাওয়ারে চলে গেছে, তারপরে স্টপ লস রান করতে আসছে, স্টপ লস খাইছে, খায় বায়ার আবার চলে গেছে। তো এই বিষয়গুলো কি আমার রিপিট করার দরকার আছে? যেমন এখানে আমাদের শিওর কোপ, কি বলেন? ইনসাইড, ইনসাইড, কোপ, কি বলেন? কি আমিনা, রিয়া, এগুলো হ্যাঁ, রিপিট করার প্রয়োজন আছে? না আমার জন্য রিপিট করার দরকার নাই। রিয়া? জি না ভাইয়া, লাগবে না। तो शाहिर भाई, प्रजापति भाई, क्या ये सारी चीज जो बेसिक्स एंड एडवांस के अंदर है, फॉरेक्स का जो चीज है बेसिक्स के अंदर वो बेस टॉपिक है, एडवांस के अंदर वो क्या है? वो एग्जिस्टेंट पार्ट है, आप लोग समझते हो। मेन पार्ट है एंट्री, सुपर एडवांस जो है वो है एंट्री एंड क्या? स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है ना? जी सर। तो क्या इस बारे में घुसो और इस बारे में घुसो? बोलो मुझे, सर क्या एडवांस ये टॉपिक चाहिए। एडवांस ये जो टॉपिक है, पहले दो जो टॉपिक है उसको रिपीट करना जरूरत है? नहीं सर। नहीं ना, वो सारी चीज तो आप लोग जानते हो। तो ठीक है। यहाँ पर मेनली ट्रेड एग्जीक्यूशन में घुसना होगा, राइट? राइट। ट्रेड एग्जीक्यूशन में घुसना होगा। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हमें दो चीज जरूरत है। क्या है दो चीज? एक ही चीज जरूरत है, एक है एंट्री एंड स्टॉप लॉस को समझना, हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग को समझना, ठीक है? तो आज जी सर। एंट्री के बारे में कुछ बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। देखो एक चीज समझो, मैं डायरेक्ट सुपर एडवांस में जा रहा हूं एंट्री के बारे में। ओके, हम लोग अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहां पर एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो बेस टॉपिक है, जो एडवांस टॉपिक है, आप ऑलरेडी जानते हो। क्या जानते हो? बेस टॉपिक वो जो बाइनरी में सिखाया वही बेस टॉपिक है। एडवांस टॉपिक क्या है? जो मैं बाइनरी में सिखाया वही एडवांस टॉपिक है, एग्जिस्टेंट पार्ट, ठीक है? आपको फॉरेक्स के लिए हमें क्या चाहिए? एंट्री का सिचुएशन चाहिए। एंट्री क्या चाहिए? एंट्री। एंट्री, ओके, एंट्री का सिचुएशन। इस एंट्री को अगर आप सही से समझ लेते हो तो आपका एंट्री ऑलवेज क्लियर होगा एंड आपका रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, आपको रिस्क ही नहीं लेना पड़ेगा। समझो ये बायर मूव है, ये कैसा मूव है? स्ट्रांग और वीक? सिंपली वैसे स्ट्रांग मूव है। एंड आप ये भी जानते हो कि यहां पर एक सेलर कैंडल आएगा, आप जानते हो। मान लो कि आप जानते हो कि ये बायर मूव स्ट्रांग है एंड ये भी जानते हो आप ये 3 कैंडल के बाद एक सेलर कैंडल आएगा ही आएगा। जी भैया।
ठीक है, तो ठीक। यहाँ पर सेलर कैंडल में ऊपर का वीक छोड़ने का, बड़ा वीक छोड़ने का चांस है और छोटा वीक छोड़ने का चांस है, बताओ मुझे। पहले ये चीज बताओ। समझो यहाँ पर सेलर आएगा ही आएगा, बायर पावरफुल है आप, और आप ये भी जानते हो कि यहाँ पर सेलर ही आएगा। यहाँ पर सेलर का बड़ा वीक होगा और छोटा वीक होगा, রাইট? छोटा छोटा हुआ ওকে, তো ধরেন এখানে বায়ার পাওয়ারফুল এবং আপনারা এটাও জানেন যে এখানে সেলার আসবে এরপরে। But এইখানে এই সেলার ক্যান্ডেলটাতে বড় উইক আসবে না ছোট উইক আসবে? কমন সেন্স কি বলে? but ডাইনামিক ভাই, ভাইয়া ছোট রিয়া, একটা বলবো। ছোট, আমেনা, রিয়া, জি ভাইয়া, যেহেতু বায়ার অনেক পাওয়ারফুল, তার মানে বড় ওই উইক জায়গাতে আসবে। বড় উইক আসার কথা না। बड़ो वीक আসবে। यहाँ पर बड़ा वीक होने का चांस सबसे ज्यादा है एंड बड़ा वीक ही होगा डेफिनेटली। जी भैया ডাইনামিক ভাই বুঝতে পেরেছেন? सर बड़ा विक तो नीचे से बनना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ना 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 ठीक है प्रजापति भाई, ऊपर से बड़ा वीक आएगा, बायर पावर में उसको फील करने जाएगा, ठीक है। मतलब सेलर पूरा कोशिश करके एंट्री करेगा तो बायर अपना स्टॉप Yes. सेलर का लास्ट रिकॉल बायर उसको फील करेगा, ठीक है सर। अगर अगर समझ लो, देखो यहाँ पर एंट्री का ये जो वीक कब बड़ा आएगा छोटा आएगा इसका मैं मतलब समझाता हूँ। अगर समझ लो यहाँ पर ऐसा हुआ है, बायर गला चिपा। अब आप जानते हो कि यहाँ से सेलर ही आएगा। अब सेलर का वीक बड़ा होगा और छोटा होगा। स्मॉल भाइया ছোট छोटा होगा। এখন এখানে বাইরের যে অবস্থা, তো এইখানে আপনি জানেন যে সেলার ক্যান্ডেলই আসবে, তো এখানে বায়ারের উইক, সেলারের ক্যান্ডেলে উইক বায়ারের বড় হবে না ছোট হবে? ভাইয়া এখন একটা ছোট হইব। এখন ছোট কিন্তু ছোট্ট হবে। ओके, समझ में आया कि ये वीक बड़ा कब होता है, कब छोटा होता है? पावर पावर। वैस भाई, शाहिर भाई, प्रजापति भाई, समझ में आया ये वीक कब बड़ा होता है, कब छोटा होता है? जी भैया जी सर समझ में आया सर। अगर ये पार्टी पावर में है, सॉरी, ये पार्टी पावर में है, तो आप श्योर हो यहाँ पर सेलर कैंडल आएगा एंड आप ट्रेड में जाओगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी लेने की ट्राई करोगे, राइट? जी भैया अगर आप यहाँ पर जानते हो कि ये मूव एग्जॉस्टेड है, तो यहाँ पर छोटा कैंडल आएगा, छोटा वीक आएगा, छोटा वीक आएगा, तो आप समझो यहाँ पर ट्रेड लोगे, तो ऐसे कि बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही पास से आप किसी भी इसका जो इनिशियल वीक होगा उसमें ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? जी भैया धीरे धीरे इसका डीप में हम घुसेंगे। जस्ट आज पहली फ्लो दिया कि कैसे हम समझते हैं, तो देखो, ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एंट्री कहां पर होता मेरे भाई? यहाँ पर तो आप एंट्री लेते, मस्ट लेते, आपका स्टॉप लॉस होता ये, आपका एंट्री होता यहाँ से ही एंट्री हो जाता, राइट? हम तो यहाँ से एंट्री लेते और यहाँ से एंट्री लेते, राइट? हमें तो ये कंफर्म था, ठीक है ना? अब बोलो कि बायर का क्या हाल है? एग्जॉस्टेड है। इनसाइड बहुत ही बुरा है ना, जी इनसाइड भी है, सब है। बायर का हाल बहुत ही बुरा है ना, तो क्या यहाँ पर बायर बड़ा सा वीक बनाएगा? नहीं 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 ना, नहीं नहीं ना, नहीं नहीं হ্যাঁ? नहीं बनाएगा। এখানে বায়ারের অবস্থা কি? রিয়ান, আমেনান, ডাইনামিক ভাই, বায়ারের অবস্থা কি? বায়ার ইনসাইড, মানে লাস্ট রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছে এটা। বায়ারের অবস্থা ভালো না খারাপ? ডাইনামিক ভাই, খারাপ। বায়ার আফটার মুভ এক্সেশন ভাইয়া অবস্থা খারাপ। বায়ারের অবস্থা কেমন খারাপ? খুবই খারাপ। আচ্ছা ওটা বলছেন। হ্যাঁ, পিছনে খুবই আমরা খারাপ, অনেকবার ডিগ্রি করে মিডিয়াম, না, মিডিয়াম এখানে- খারাপ, এখানে খারাপ খারাপ একদম খারাপ। একদম খারাপ। তো আমরা এখানে নিশ্চিত
যে এই প্লেসটাতে আমরা যদি ফরেক্সে এন্ট্রিতে যাই তো এখানে বড় উইক হবে না, তো আমরা যদি একটু সেফটি নিয়ে এখানে এন্ট্রি ফেলি, এখান থেকে ধরেন একটু সেফটি নিয়ে এন্ট্রি ফেললাম, হ্যাঁ এখানে ধরেন এন্ট্রি ফেলে দিলাম, রাইট? খেলতে তো হবে এটাতে, হ্যাঁ। এন্ট্রি ফেলে দিলাম, ধরেন এইখানে এন্ট্রি ফেলে দিলাম 552 তার মানে আমাদের স্টপ লস ধরেন আমরা রাখছি 52-57 চলে গেছে, ওকে দাঁড়ান 52-800 তার মানে 53 অলমোস্ট, 53 থেকে 54-900 তার মানে আমাদের এখানে কত পিপ সর্বোচ্চ গেলে 1200-1300 পিপ নাকি? 54-900 900 আর 200 1100 পিপ, মানে কত ডলারের রিস্ক 0.10 তে 0.10 কত ডলারের রিস্ক? $11 রিস্ক, 10 পয়েন্ট এটা 11 ভাইয়া। $11 रिक्स, হুম, राइट? হুম। तो यहाँ पर हमारा रिस्क कम होगा, क्या हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं? জি ভাই। जी सर। बाहर का सिचुएशन बहुत बुरा है, वो तो यहाँ पर क्या देगा, नहीं देगा, बड़ा वीक नहीं देगा, जी भैया। तो हम ये जानते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस है $15 का, राइट? हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करे हैं, हमारा यहाँ पर रिस्क होगा 11 और $12 का रिस्क होगा, ओके जी भैया। रिस्क होगा, एंड प्रॉफिट कितना होगा 52 से 82 तक, ऑलमोस्ट $300 का प्रॉफिट होगा, समझे? इस $15 रिस्क लेके अगर ये ट्रेड आप अभी एग्जीक्यूट करते तो $300 आपके पॉकेट में रहता 0.10 में, समझ में आया? जी भैया। हाँ? जी सर। जी। समझ में आया? क्यों यहाँ पर हम हमारा एंट्री प्लेस में देखते हैं, यहाँ पर ये भी तो हमारा एंट्री था, ভাইয়া রানিং ক্যান্ডেলের উইকের উপর থেকে যদি এখন স্টপ লস দিই, এখান থেকে হুম, না 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 না, কারণ সেলার তো তার কাজ শেষ করলো না, না আমি কথার কথা বলছি, মানে যদি ফেলি ওই হিসাব করেই তো ফেলবো না, মানে হ্যাঁ আমি ওই ওই পিছনের সিনারি হিসাবে বলতেছি কি, মনে করেন এখানে হচ্ছিল ওইটা, তাহলে আমরা হ্যাঁ এই উইকের উপরে এই উইকে তো স্টপ লসটা লাগাইতাম, মনে মানে করেন এখানে পিছনে তিনটা ক্যান্ডেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এই সেলার যে আরো এখানে নামবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এখানকার কথা বলছেন জি জি জি, না, স্টপ লস আমরা কোথায় লাগাবো সেটা আমি পরে আবার আরো ডিপলি শিখাবো, হ্যাঁ হুম, यहाँ पर जो होता है कि यहाँ पर बड़ा वीक नहीं, पहले ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पर क्या बड़ा वीक बना सकता है और नहीं, नहीं उस सकता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि हम स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, वो बात के बाद है ডাইনামিক ভাই, समझे? বুঝছি বুঝছি ভাইয়া, প্রথমে আমরা আগে শিখি যে এখানে বড় উইক তৈরি করতে পারবে কিনা, জি। ওকে আর বড় ভাইয়া উইক, আরেকটা কোশ্চেন ভাইয়া, হুম ভাইয়া এখানে ক্যান্ডেলের টাইমটা আমরা দেখি না কেন, মানে আমার একটু একটা প্রবলেম হচ্ছে, মানে 15 মিনিট তো শেষ হয়ে আরেকটা যে শুরু হবে, ওটা কি এখানে বাইনারিতে যেরকম দেখায়, ওটা আমরা এখানে কোথায় দেখবো ভাইয়া? এই যে যদিও নিচে, সিলি কোশ্চেন, হ্যাঁ ওটা একটু এই আমার যে প্রবলেম নিচে, এই যে নিচে এখানে শেষ হয়ে গেছে, এটা কত 14:45, এটা শুরু হয়েছে 3টার দিকে শেষ হয়ে যাবে ক্যান্ডেল, এই যে নিচে আচ্ছা দেখায়, না আর এই যে ভাইয়া এখানে এখানে এই যে এখানে টাইম দেখায়, ও আচ্ছা আচ্ছা, না মোবাইলে ওটা দেখতেছিলাম না তো, আচ্ছা বুঝছি ভাই, এখন ना मोबाइल में देखा जाए ना भाई, मोबाइल स्क्रीन आसे ना, यहाँ पर अच्छा टाइम देख सकते हो, यहाँ पर टाइम देख सकते हो, ये अगर थोड़ा और जूम कर लो तो ऐसे ऐसे देखोगे, समझे? তাহলে তো ভাইয়া মোবাইলে এন্ট্রি নিতে তো কষ্ট হয়ে যাবে, টাইম যদি দেখতে না পাই। नहीं मोबाइल में एंट्री नहीं लेने का कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज आप समझो कि आप सब लोग बैठ के रहोगे पूरे दिन यहाँ पर, पूरे दिन इस ग्रुप में सब बैठ के रहेगा पूरे दिन, मोबाइल से देखेगा, कोई भी पीसी से देखेगा, जस्ट इस ग्रुप में अनाउंस आएगा कि भाई सिचुएशन आया है, आओ तो जरा देख लो, समझे मेरे भाई? आज का दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट? आज का दिन यहाँ से, सॉरी कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई आज का दिन? থেকে গ্যাপ 29 29 Yep. 29 27 28 29 यहाँ से स्टार्ट हुआ मे बी, ओके आज का दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट? जी जी यहाँ सर। से स्टार्ट हुआ, तो आज का जो 29 का स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पर हमारा ट्रेड था एंड यहाँ पर सेलर का हाल बहुत ही बुरा है, तो यहाँ पर वो बड़ा वीक नहीं बनाएगा, डेफिनेटली नहीं बनाएगा, इस टारगेट तक जाएगा ही जाएगा, यहाँ पर हम $200 और $300 का प्रॉफिट कर सकते हैं, यहाँ पर हम $200-300 प्लस इस जो गैप दिया ना, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट $3,000 का प्रॉफिट होता, मे बी मैं देखते हूँ यहाँ पर तो ट्रेड लेता ही लेता 85 to
76, 476, 385, ऑलमोस्ट $1,000 का प्रॉफिट होता है यहाँ पर। देखो 2 सिचुएशन 3 सिचुएशन दे गया, इसके बाद ओके यहाँ पर दे गया, यहाँ पर आप $200 और $300 का प्रॉफिट कर सकते हो। इसके बाद मैं गंजा में नहीं घुसूंगा, बहुत ही सिंपली वैसे रहूंगा। यहाँ पर आपका एक प्रॉफिट बुक होता आज का, आज अगर रहते तो 51 से 52 से 83,000 ऑलमोस्ट $300 का प्रॉफिट होता 0.10 में। आज कितना अपॉर्चुनिटी देके गया, समझ में आया? जी ওকে, তো আমাদেরকে কি করতে হবে? প্রথম কাজ আজকের টাস্ক, এন্ট্রির বিষয় আজকের টাস্ক, যে কোথায় বড় উইক আসলো, কেন আসলো, হুম এটা আইডেন্টিফাই করা। বোঝা গেছে? জি ভাই। হ্যাঁ, কি হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে হবে? पावर पावर। ये चीज ओनली फॉरेक्स में वर्किंग है नहीं, ये बाइनरी में भी है कि कौन कैंडल में, कौन सा कैंडल में आप सेफ्टी पाओगे एंड कौन सा कैंडल में आप सेफ्टी नहीं पाओगे, देखना चाहोगे? बाइनरी में ही में भी सेम वर्क करता है, सेम। बायर के पास पावर है तो यहाँ पर वो बड़ा विक बनाएगा ना। सेलर के पास Yes, पावर है, यहाँ पर वो बड़ा विक बनाएगा ना। जी सर। कहाँ पर आप सेफ्टी पाओगे और कहाँ पर नहीं पाओगे, वो चीज बाइनरी में भी सेम वर्क करते हैं। ठीक है मेरे भाई? जी सर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा कैंडल में बड़ा वीक आएगा, कौन सा कैंडल में छोटा वीक आएगा, क्या ये समझ में आ गया? इसका आइडेंटिफाई करने का चीज देखो, यहाँ पर आपका सेलर एंट्री है, क्यों यहाँ पर बड़ा वीक नहीं बनाया बोलो तो? आप यहाँ पर बड़ा वीक क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर এখানে কেন বড় উইক হলো না, ছোট উইক কেন হলো? बायर्स का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, এখানে কেন বড় पावर नहीं है, बायर्स आर लिटिल बिट बाहर का हाल खराब है। यस, एक एक करके बोलो। बाहर का हाल खराब है यहाँ पे। ओके, कैसे खराब है इसको आप समझते हो, राइट? वीक कवरेज करके वो चल गया। तो वैस भाई यहाँ पर क्यों बड़ा वीक नहीं बनाया? बायर्स मोस्ट एग्जॉस्टेड है आखिर भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं वो वीक फिलिंग करके एग्जॉस्ट हुआ था एंड वीक खुद के अंदर खुद रह गया बायर्स। तो दोनों तरीके से बायर्स एग्जॉस्टेड है, तो उस वजह से बायर्स का बड़ा वीक आना डाउटफुल है यहाँ पर। ओके, तो हम अगर यहाँ पर एंट्री में जाते तो ये जो चीजें और ये जो चीजें इसमें से ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते डाउन के लिए, ठीक है? अगर जाते। जी सर। राइट जी सर, करेक्ट। ओके, आप बोलो कि यहाँ पर सेलर का क्या हाल है, सेलर का क्या हाल है? सेलर का हाल भी खराब है। वन कैंडल टारगेट फिल अप, सेलर एग्जॉस्टेड, ओके, एग्जॉस्ट हो गया। तो इस कैंडल में क्या सेलर प्रेशर दिखा के नीचे ला सकता? नहीं, कोई वीक नहीं आएगा नीचे से। कोई वीक नहीं आएगा नीचे से। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कुछ अंदर में घुस रहा है कि कब वीक बड़ा होगा, कब वीक छोटा होगा। जी सर। और इसके बाद एक प्रोसेस में सिखाऊंगा कि कब ये वीक को टच करने के बाद चला जाएगा, कब टच करने के बाद भी आएगा। स्टॉप लॉस प्रोसेस को मैं भी सिखाऊंगा, बट एंट्री को पहले क्लियर कर लो। पहले 2-3 दिन एंट्री के ऊपर, वीक के ऊपर बहुत सारे काम करो। बाहर का क्या हाल है भाई? क्या यहाँ पर बाहर बड़ा वीक ले आ सकता है? नहीं ना। नहीं। यहाँ पर देखो फिर से सेलर का सेम हाल है। क्या यहाँ पर सेलर बड़ा वीक लेके आ सकता है? नहीं। বাইরের কে ক্যান্ডেল কে আন্দার রিয়া আমেনা বুঝতে পেরেছেন বাইরের কি অবস্থা? কে এখানে কি বাইরে বড় উইক আনতে পারবে? বায়ার তো হ্যামারের মধ্যে প্রেসার দিয়ে শেষ ভাইয়া। হ্যাঁ, এখন বুঝেন একটা মজার জিনিস, সেটা হচ্ছে যদি আপনি এইটাকে ভালো মতো না বুঝেন, যেটা আমি বুঝালাম, এইটাকে যদি ভালো মতো না বুঝেন তাহলে আপনি কি সঠিক জায়গায় এন্ট্রি নিতে পারবেন? না ভাইয়া, নেওয়া যেত না। ধরেন আপনি বাইরে যে বড় উইক বানাইতে পারবে না, আপনি ধরেন এমন একটা জায়গায় যাই, আপনি ধরেন এখানে ডাউনে ট্রেড করতেছেন, মেবি, হ্যাঁ, এখানে ডাউনে ট্রেড করতেছেন, ধরেন এই যে এখানে
দাঁড়ান একটা জায়গায় আসি। ওকে, এইখানে আপনি ধরেন ডাউনে ট্রেড করতেছেন, এইখানে, হ্যাঁ, এটাতে আপনি ডাউনে ট্রেড করতেছেন, ধরেন বাইরের কি অবস্থা, পাওয়ারফুল আছে না বাইরে? বড় উইক করবে ভাইয়া, हम्म বড় উইক बायर করবে, यहाँ पर पावरफुल है कि नहीं? পাওয়ারফুল ভাইয়া, एवरी कैंडल स्टेबल एंड प्रेशराइज। স্টেবল ক্যান্ডেল, सो बायर প্রেসারাইজ, बायर के पास पावर है कि नहीं? পাওয়ার, ओवैस भाई, प्रजापति भाई, शाहिर भाई, बायर के पास पावर है सर। আমেনা, রিয়া, বাইরের কাছে ক্ষমতা আছে কিনা? জি জি ভাই আছে। আছে। তো বাইরে এখানে বড় ক্যান্ডেল উইক করার ক্ষমতা রাখে কিনা? ধরেন আপনি এটাতে সেলারে যাবেন, আপনার জন্য নিশ্চিত, ক্ষমতা রাখে কিনা? জি রাখে। রাখে। তাহলে এখন যদি আপনি ধরেন এখানে সেলারে যাবেন, আপনি এখান থেকে এন্ট্রি নিয়ে নিলেন, হ্যাঁ, ধরেন এই যে বাইরের উইকটা থেকে এন্ট্রি নিলেন 301 থেকে, তাহলে আপনার রিস্ক কত ডলারের দাঁড়াইলো জানেন? 311। তার মানে কি $100 রিস্ক দাঁড়াই গেছে। $10 ডিফারেন্স, তার মানে কত ডলার রিস্ক? 100, $100 রিস্ক। $100 আপনি এই ট্রেডে রিস্ক নেবেন, যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনার রিস্ক কি সব অ্যাকাউন্ট ব্লো হয়ে যাবে না? জি ভাইয়া, यहाँ पर अगर आप लोग डाउन के लिए सोच रहे हो, समझो, यहाँ पर अगर आप लोग डाउन के लिए ट्रेड लोगे, अगर आप ये वीक कब बड़ा होगा छोटा होगा इसको नहीं जानते, आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए, यहाँ पर ट्रेड डाउन के लिए एग्जीक्यूट कर दिए, बट रिस्क आपका कितना हो गया? देखो, $10 का डिफरेंस, दैट्स मीन 1000 पीप का डिफरेंस, $100 का रिस्क हो गया ना? जी सर। तो हम क्या यहाँ पर $100 का रिस्क लेंगे? नहीं ना। आप समझो बायर का अब क्या हाल है, बोलो। एग्जॉस्टेड हो गया, ভাইয়া एग्जॉस्टेड है, प्रेशर दिखाकर एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्टेड। हमारा एंट्री कहाँ पर होगा? बायर का वीक से होगा। यहाँ पर से अगर हम लेते 96 एंड हमारा रिस्क होता 97, तो कितना डॉलर का रिस्क होता? 96 to 97, $1 का, राइट? $10। $10 का, $10 का रिस्क होता। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पर बड़ा वीक नहीं बनेगा? बायर का हाल तो अब बुरा हो गया मेरे बच्चे, खत्म हो गया ना। आफ्टर मूव एग्जॉस्ट, तो बट यहाँ पर बड़ा वीक कब हो सकता था? अगर बायर पावरफुल बायर होता का तो एक स्टेबल कैंडल आ गया तो चलो पावर में रहता तो तब बड़ा वीक होता। बड़ा वीक होता, तो हमारा बड़ा रिस्क हो जाता। क्या हम बड़ा रिस्क में जाएंगे भाई? नहीं ना, नहीं सर, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो हम लोग अगर ये कंफर्म है कि यहाँ पर बाहर गया तो हमारा एंट्री यहाँ से होगा ना। अगर समझो ये भी ठीक है, तो हमें ये बड़ा वीक छोटा वीक कब आएगा ये आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बैलेंस ही ब्लो हो जाएगा भाई। এখানে যে বড় উইক আসবে আমাদের এন্ট্রিতে না ছোট উইক আসবে, এটা আইডেন্টিফাই করা কতটা জরুরি? জি ভাই, তাহলে হুম? ভাইয়া এই যে গ্রিনটা যে অর্ডার ফ্লো ডিক্রিজ করলো বড় থেকে ছোট, তাহলে আমরা এখানে এন্ট্রি নিতাম বায়ার্স এর উইক থেকে না, কারণ বায়ার্স এর অবস্থা বেশি হ্যাঁ, খারাপ। এই যে এখানে তো আমাদের ওপেনিং থেকে যেতে পারতাম আমরা, কোনো সমস্যা নেই। বা এটা যদি নাও যেতে পারতাম তো এটার থেকে তো মারতাম মাস, কারণ এর নিচে মার্কেট আসবে, এই কি টার্গেট পর্যন্ত মার্কেট আসবে ডেফিনেটলি। আরো বড় উইক করে এটার এত বড় উইক করে এই পর্যন্ত যাইতে পারবে না, এগুলা যাইতে পারবে না, এটা তো ডেফিনেটলি শিওর। কারণ বাইরের অবস্থা পিছনে খারাপ, বাইরের কা হাল পিছে যদি আমরা বুড়া আবার है। নতুন করে আরো সেফটি নিলে তাহলে বায়ার্স এর উইক থেকে যদি এন্ট্রি নিতাম তাহলে তো ঠিক ছিল। আরো যদি সেফটি হতো বাইরের উইক থেকে, হ্যাঁ ঠিক ओके, আছে ভাইয়া। उसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, बट अब जो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वीक कब बड़ा होगा कब छोटा होगा इसको समझना। अब देखो, अब हम लोग इस कैंडल में ट्रेड लेंगे, राइट? ट्रेड लेंगे ना। जी भाई, यहाँ पर इतना बड़ा वीक आया, क्यों आया मेरे भाई? देखो तो सेलर का हाल, सेलर में ओ कुछ पावर है। पावर है, इसलिए तो यहाँ पर बड़ा वीक आया। हमारा एंट्री इस यहाँ पर बायर के लिए होगा ही होगा, बट हम क्या करेंगे, कहां से लेंगे, वो बाद में सीखेंगे। बट अब सीखो कि यहाँ पर बड़ा वीक हो सकता है, समझे? তো সবাই বুঝছেন কখন বড় উইক হবে কখন ছোট উইক হবে? জি ভাইয়া, যদি এইটা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারেন ডেইলি ভাই। ভাইয়া এইটা ভাইয়া বাইনারিতে দিতেন ভাইয়া। না, এটা বাইনারিতে দিয়ে নি, এটা ফরেক্সের জন্যই রাখছি, থাক। এতদিনে তো রিয়া আপু চান্দে এলন মাস্ক উঠে যাইতো, আমি উঠে যাইতাম। না, আমার কাছে ভাইয়া একটা ভ্যালুয়েবল নলেজ দিছেন।
না আমার কাছে মূল বিষয়টা কি এইভাবে থিঙ্ক মেরে করি নাই আসলে ভাইয়া, সত্যি কথা। আপনি যেভাবে সহজ করে দিচ্ছেন এরকম থিঙ্ক করি নাই। হ্যাটস এবং অফ। এটাই হচ্ছে ফরেক্স এর মূল চাবিকাঠি, কারণ বাকি নলেজ সেম। জি এই ভাই, না উইক এই বড় ফরেক্স ছোটকে ভাইয়া সব প্ল্যাটফর্মে এটা কাজ দিবে ভাই, আজকে যেটা বুঝাইছেন সব একদম প্ল্যাটফর্মে বেসিক। সব প্ল্যাটফর্মে যে কোথায় আমি বাট সেফটি পাবো কোথায় সেফটি পাবো না। জি আপনি ভাইয়া। ভাই আপনি তো অনেক আগে এটা খুইয়া দিছিলেন, বলতে এরকম ভাবে ক্লিয়ার করছিলেন না, কিন্তু মানে আপনি একটু আর হিন্ট ক্লিয়ার দিছিলাম। হিংস কিন্তু দিছিলেন, আপনি হিন্ট হ্যাঁ। হুম। ফরেক্সের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কি জানেন? আমাকে প্রয়োজন আপনাদের। অফ কোর্স ভাইয়া। ঠিক আছে, কারণটা কি দেখেন, এই যে ফরেক্সে এখন আমরা আপনি একটা বলবেন মার্কেট, রানিং ক্যান্ডেল আপে যাবে বলবেন, সিচুয়েশন আমরা বসে থাকবো। ঠিক আছে, এবং এখানে যে বড় উইক হবে না এটাও আপনারা জানেন, কারণ জি ভাই। সেলার নাই। অবস্থা খারাপ হয়ে এখানে ইনসাইড এসে, সো এখানে তো বড় উইক এত বড় টান নেয়া করবে না রে ভাই, করবে না ভাইয়া। ना। तो যাই হোক ওটা পরের বিষয়। तो आप लोगों को मेरा जरूरत है, किस लिए? इस नॉलेज के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज ये सारी चीज मैं सारे प्लेटफॉर्म को इजी कर चुका हूँ, सारे प्लेटफॉर्म को इजी कर चुका हूँ। आपको प्रॉफिट, हायर बैलेंस प्रॉफिट करने के लिए मेरा जरूरत है आप लोगों को। समझो, अगर एक दिन में ऐसा 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, यहाँ पर एक ट्रेड था, यहाँ पर ट्रेड था, यहाँ पर ट्रेड था, राइट, यहाँ पर ट्रेड था हमारा, यहाँ पर ट्रेड था, आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते थे आज? आपका नॉलेज में है शाहिर भाई, वैस भाई, प्रजापति भाई, क्या आपका नॉलेज में है कितना ज्यादा प्रॉफिट होता, कितना प्रॉफिट होता? हाँ? इस कैंडल में प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट $1000। इस कैंडल में ही प्रॉफिट होता $1000, बिकॉज क्लोज करने के पहले तो हम क्लोज नहीं करते, बिकॉज यहाँ पर बहुत बुरा है सेलर का हाल, तो क्लोज तो नहीं करते। ऑलमोस्ट $1000 आज का, यहाँ पर होता ऑलमोस्ट 1451, तो ऑलमोस्ट $400, तो $1400 हो गया, $1400 हो गया। यहाँ पर होता ऑलमोस्ट 50 to 86, ऑलमोस्ट $400 का, $1800 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर होता 53 to ऑलमोस्ट समझो 77, 52 to 76, ऑलमोस्ट $300 का। ऑलमोस्ट आज जस्ट इस 4 ट्रेड में रिस्क होता $50, हाईएस्ट रिस्क होता, हाईएस्ट रिस्क 4 ट्रेड मिला के, और प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट $2100 का प्रॉफिट होता आज। जी सर। समझ में आया क्यों मैं बोला था कि अगर मैं फॉरेक्स सिखाना स्टार्ट कर दूं तो आप बाइनरी भूल जाओगे, बाइनरी में और एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, बाइनरी में और $50 लेके नामोगे सब घुसा दोगे अगर डिसिप्लिन ना हो। और यहाँ पर आपको डिसिप्लिन होना ही होगा, बिकॉज बहुत टाइम के बाद एक सिचुएशन, अगर आप समझो यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, तो यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, तो आपको इसके पहले ये ट्रेड सारे 15 मिनट 1 आवर 2 आवर 3 आवर वेट करना होता है कि नहीं? आपको डिसिप्लिन में खुद ही फॉरेक्स लेके आता है। समझ में आया? जी सर। एंड इतना सिचुएशन एवरी डे दे जाता है हम लोगों को, एवरी डे। एक भी दिन मुझे दिखा नहीं सकते कि यहाँ पर आपका एंट्री नहीं मिलेगा। यहां से अगर एक ही पकड़ लो तो आपका तो $300 का प्रॉफिट हो जाता है, और एटलीस्ट $200 का प्रॉफिट हो जाता है, राइट? आमेना रिया, ডাইনামিক ভাই, অ্যাটলিস্ট একটা যদি ধরে তাও তো দুইটা $200 প্রফিট হয়ে আসছে, 15টা ট্রেডে $3000 প্রফিট হয়ে আসছে। তারপরে কি হবে? তারপরে কি মনে করছেন এগুলাকে ছাইরা দিব? এগুলাকে ধরবো 1 লট অথবা 2 লট, $500 রিস্ক নিব। এখানে $500 খাইতে পারবে আমার যে নলেজ? না ভাইয়া। $500 খাইতে পারবে? সবাই কথা বলেন না কেন? $500 না এখানে ভাইয়া, খাইতে পারবে? আর মার্কেটে ওই টপিক নাই ভাইয়া, আপনার যে নলেজ আছে কয়টা লস দিবে আমাদেরকে? $500 খাইতে পারবে এখানে? কিন্তু আসলে না, কত না। আসবে? ধরেন 52 থেকে 76 নাকি? 52 থেকে 76 কত হয়? এদিকে 6, এদিকে 10, 16, এদিকে 8, 24, $4800 প্রফিট দিয়ে যাবে। শুধু আপনাদের $3000 ব্যালেন্স পর্যন্ত নিয়ে যাব প্রথমে, আর $4800 প্রফিট দিয়ে যাওয়া মানে কি? তারপরে প্রত্যেকটাতেই তো এরকম এগুলা জায়গায় $500 রিস্ক নিব। $500 খাইতে পারবে আবার মার্কেট? না ভাইয়া, কোত্থেকে? वैस भाई, प्रजापति भाई, समझ में आया कुछ? आप लोगों को पहले 15 to 20 ट्रेड एग्जीक्यूट करके $300 $3000 अर्न करना होगा। उसके बाद ऐसा एक प्लेस देख के
2 लॉट का रिस्क लेंगे, ऑलमोस्ट 5000 5K आ जाएगा। इसके बाद हर एक ट्रेड में $5 $500 का रिस्क लेंगे। अगर 2 में एक होता है तो एक दे जाएगा एटलीस्ट 2000 से 3000 मिनिमम दे जाएगा ना। जी सर। 2 ट्रेड में एक होना चाहिए। एवरी वीक में ऐसा अगर 2 दिन करते हो तो $5K आ जाएगा ना आपके प्रोडक्ट पॉकेट में एवरी वीक। जी सर। तो मंथ के बाद कितना होगा 20K। एंड उसको अर्न करने के लिए कोई भी रिस्क नहीं है फॉरेक्स में। समझ में आया कुछ? समझ में आया और नहीं आया भाई? जी जी सर। वैस भाई समझ में आया कुछ? हाँ जी सर, समझ में आया सर। ओके तो देखो कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोगों का बेसिक एंड एडवांस क्लास हो गया, सुपर एडवांस में हम घुस गए बिकॉज वो क्लास आप जानते हो, सारे जानते हो। अब हम लोगों नेक्स्ट 1 वीक में सीखेंगे ये वीक कैसे बड़ा होता है, कैसे छोटा होता है। उसका आज पहला क्लास हुआ, उसका हिंट दिया, अच्छा लगा? जी सर, जी अच्छा भाई। लगा। गुड। तो ये एक चीज है जिसके लिए आप मुझे पे किए हो। बेसिक और एडवांस तो आप जानते थे, ये एक चीज है इसके लिए पे किए हो। एंड आपका अर्निंग हो एंड आप उस लेवल तक पहुंचो, इसके लिए मेरा जरूरत है आप लोगों को, समझे? इसके लिए इस $150 को आपने पे किया। अगर मेरा हाथ आपके ऊपर रहता है तो ये सारी चीज क्या मिस होगा रे भाई? बोलो मुझे। समझे? यहाँ पर ही कर सकते हैं, इस राउंड नंबर से लेते 500 से कितना गया 21, यहाँ पर ही $200 प्रॉफिट हो जाता है। $200 का प्रॉफिट था यहाँ पर, जैसे जो क्लास लिया इसके अंदर ही $200 का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं हम। ठीक है ना भाई? जी भाई। आप बोलो मंथली 20K अर्न करना चाहते हो और नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, करना चाहते हैं। बाइनरी से बहुत इजी है एंड जिस तरीके से आपने समझा है, इट इज टू गुड। इजीली वी कैन मेक $20,000 a month। इजीली, बहुत ही इजी है। मैं बाइनरी में क्यों घुसता हूँ मैं बताऊं। मैं बाइनरी में घुसता हूँ इसलिए कि मुझे दिखाना पड़ता है सब लोगों को कि मैं बाइनरी में ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ रेगुलर। ये मुझे दिखाना पड़ता है। वो जो कोर्स टोर्स लॉन्च है ना, इसके लिए। नहीं तो मैं बाइनरी में ट्रेड नहीं करता। आज भी शौक के लिए एक एंट्री लिया, ये जो BRL में 21 22 का कैंडल कौन सा है? 21 22, ओ यहाँ पर है। ये जो कैंडल है इसमें ट्रेड लिया था, ठीक है? 21 और 22, ओ 14 22 14 22 14 22 24 प्रॉफिट। 23 22, ये जो रेड कैंडल हुआ इसमें, समझ में आया? ये जो रेड कैंडल है इसमें ट्रेड लिया था तो प्रॉफिट दिया। क्या करूं भाई, प्रॉफिट दे देता है मार्केट। इसमें भी ठोक देता। आप लोग ठोकते ना। तो आप मुझे बताओ, आप लोग क्या प्रॉफिट कर सकते थे और नहीं? यहाँ पर क्या है আমেনা, রিয়া, ঈশ্বর প্রজাপতি, এখানে কি প্রফিট করা সম্ভব বাইনারির চেয়ে ইজিলি? ইজিলি ভাই, ইজিলি। এবং বাইনারির চেয়ে বেশি। ওই $10 রিস্কে আপনি 5টা ট্রেড নিচ্ছেন, বাইনারিতে $40 কামাবেন। এখানে 5টা ট্রেড নেবেন, আপনি মিনিমাম 300 500 $700 কামাবেন একদিনে। ওই $15 রিস্কে, ওই $10 রিস্কে।
জি ভাই। কি রিয়া মুখ দিয়ে কথা বলে না কেন? এই আপু ডলারের স্বপ্ন দেখতেছে। জি ভাই। কথা বেরোচ্ছে না কেন? এগুলা কথা না বেরোলে তো তখন গালিগালাজ খাবেন, তখন ভালো লাগবে? জি না ভাইয়া। বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? জি। তো উইক কখন বড় হয় কখন ছোট হয় এই বিষয়ে এখন আপনারা অ্যানালাইসিস শুরু করেন। আগামী 2-3 দিন অ্যানালাইসিস করেন। 2-3 দিন পরে আমি নেক্সট ক্লাস নিব। 7 तारीख মধ্যে শেষ করব। 10 तारीख সবাই लाइव बैलेंस से ट्रेड स्टार्ट। ओके 7 के अंदर मैं कोर्स को खत्म कर दूंगा और 10 से लाइव ट्रेड स्टार्ट होगा। सब लोग बैठे रहोगे और मुझे बुलाओगे, सिचुएशन ऐसा वाले आएगा तो तब, ठीक है? सब लोग एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे बिकॉज एक ही मार्केट में रहेंगे, दूसरा कोई भी मार्केट में मत जाना, नहीं जरूरत है। गोल में रहो, अच्छे रहोगे। আচ্ছা ভাইয়া, হুম ওই যে আফটার মুভি যে টাস্ক গুলা দিছিলেন, এরকম সোয়াইফেরও কয়েকটা টাস্ক দিবেন আপনি কইছিলেন, এগুলো যদি এখন দিয়ে দিতেন তাহলে মনে হয় আমাদের জন্য একটু ভালো হইতো। দিব রে বোন, দিব, সবই দিব, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আগে আফটার মুভ এক্সিস্টনে কি কি করছেন ওইটা আমারে দেখাইতে হইবে না? হ্যাঁ ভাই আপু ওইটা তো আমরা আমারে করছি দেখাইছেন? কিন্তু আপু আর বাইনারি তো জামুই না, বাইনারি বাদ দেন। আমারে না, দেন। বাইনারি নলেজটা তো আমার কাছে আছে, ওইটা দিয়ে বন্ধ তো করো। ওকে নিমা কেন নিয়ে কথা আর বলে। বাইনারি কথা কইনি না, বাইনারি বাদ। क्या आज समझ में आया? क्लास का मजा आया? ভাইয়া, আমার এটা তো আর প্রকৃতির নলেজ না, নলেজ তো একেবারে হাই অ্যাকুরেসি নলেজ। ভাই শুধু আমি যে নলেজটা দিছি, আমি যেভাবে বুঝাইছি, এই জিনিসটা আপনি ট্রেডিং এর যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যান, একটা জায়গায় যদি আমাকে ভুল দেখাতে পারেন, मैंने जो नॉलेज दिया, इंफॉर्मेशन दिया ट्रेडिंग का, एक भी प्लेटफॉर्म में मुझे गलत साबित करो, एक भी प्लेटफॉर्म। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ক্লাস ওয়ালাইকুম কি হলো আসসালাম। নাকি? জি ভাই, ক্লাস হলো, তবে অনেক ইম্পর্টেন্ট ক্লাস হয়েছে আজকে। ওই বেসিক অ্যাডভান্স দুটোই তো আপনারা জানেন, আমি সুপার অ্যাডভান্সে ডিরেক্ট ঢুকে গেছি এন্ট্রিতে। ওগুলো বুঝাই দিছি যে কিভাবে কিভাবে জানেন, রেকর্ডটা একটু দেখে নেবেন। হ্যাঁ রাত ভাই, ঠিক আছে। ওকে। কি আজকের প্রথম বিষয়টা আসছে, মাথায় আসছে? হুম মাথায় ঢুকছে রে? क्या दिमाग में घुसा? জি ভাই। जी सर जी। सर हाँ एडवांस सेंटिमेंट और ये कुछ वो क्या है? बुझी नहीं, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? एडवांस सेंटिमेंट के बारे में कुछ बोल रहे थे। एडवांस सेंटिमेंट तब पढ़ाऊंगा जब ये पहले आज में क्या सिखाया, वीक कब बड़ा होता है कब छोटा होता है। एडवांस सेंटिमेंट तब आएगा जब मैं स्टॉप लॉस हंटिंग को सिखाऊंगा। जी सर। ओके, जी ये मार्केट तो यहाँ से ही डायरेक्ट ऊपर जा सकता था, क्यों नहीं गया? क्या मसला था यहाँ पर एक मसला था। ओके, यहाँ पर एक जी मसला था, जिस मसले को कवर करना होगा, तो ये चीज जब सिखाऊंगा तब वो एडवांस सेंटिमेंट आपको कवर आ जाएगा। ओके सर। ओके, आप लोग तो रेडी रहो सब लोग। एंड वीक क्यों बड़ा होता है क्यों छोटा होता है, इसमें 2-3 दिन प्रैक्टिस करो। 2 जी तारीख को सर। नेक्स्ट क्लास लूंगा, 2 तारीख को। 2 तारीख के पहले यही सबसे बड़ा फैक्ट है, वीक कब बड़ा होता है कब छोटा होता है। समझ में आया मेरा दोस्त? यस सर। हम्म, तो ठीक है, आज रखता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले।